In 1924, Louis de Broglie postulated that all forms of matter have both wave and particle characteristics. According to this hypothesis, electron, just like light, have a dual particle wave nature. Two American physicists, C.J. Davison and L.H. Germer, were the first to experimentally prove the wave nature of material particles in 1927. Displayed here is a block diagram of the experimental setup used by Davison and Germer. It consisted of a nickel chloride crystal, the target, an electron gun, G, and a detector. The electron gun produced a beam of electrons. The electron gun used by them consisted of a tungsten filament, F, and high and low tension batteries. The low tension battery was used to heat the filament. The red hot filament produced an electron beam. A high tension battery was provided to accelerate the electron beam. The detector or the electron collector moved on a graduated circular scale. A sensitive galvanometer was also connected to the detector. How did they perform the experiment? The electron beam was made to pass through a pinhole and made to strike the crystal normally. The electrons scattered in all directions, acting like waves. They observed that at certain angles, the detector indicated a peak in the intensity of the scattered electron beam. This maximum intensity was due to constructive interference, a phenomenon confined only to waves. Thus they experimentally proved the wave nature of electrons. Davison and Germer plotted a graph taking the angle between the incident and scattered direction of the electron beam, phi, along the y-axis and the intensity of the scattered beam at different values of accelerated potentials along the x-axis. The nature of the graph is shown here. From the experimental curves obtained, the following conclusions were drawn. Intensity of scattering depends upon the angle of scattering, phi. A bump or kink always occurs in the curve when phi is equal to 50 degrees. This bump or kink increases as the accelerating potential difference is increased. At 54 volts, this bump is maximum and then it decreases on further increase of potential difference. This peak indicated the wave behavior of the electrons. Thus, Davison-Germer experiment verifies de Broglie's hypothesis of wave nature of matter particles. Hello students. In the previous lecture, we had discussed the wave nature of an electron, और we have calculated the wavelength of an electron. और जब हमने वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर दी तो हमको इसका वैल्यू आ गया था 12.27 अंडर रूट ऑफ v, और वो जो वेवलेंथ थी उसको हमने लिया था एंगस्ट्रॉम में. अब वो हमने प्रूव किया था या हमने उसको देखा था मैथमेटिकली, हमने उसको देखा था. अगर मैथमेटिकली हमने उसको देखा, क्या एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव होती है या इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट एक वेव होती है? अगर एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को प्रूव कर पाए तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास भी कौन सा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है. क्योंकि फिजिक्स में हम तभी कोई चीज मानते हैं या तभी कोई चीज हम ये फिर उसको हम मानते हैं या उसको हम आगे फिर ले जाते हैं जब हमें उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिलेगा.
अगर हम लाइट को देखेंगे तो हमने कहा कि लाइट जो है पहले हमने कहा था कि वो कार्पस्कुलर नेचर है उसका, फिर हमने कहा कि हाइजीन ने कहा कि उसका वेव कैरेक्टर है, और वेव कैरेक्टर में कि हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, थॉमस यंग का एक एक्सपेरिमेंट हो गया था, और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो इंटरफेरेंस है यानी डार्क और ब्राइट बैंड्स बन गए हैं। डार्क और ब्राइट बैंड्स बनने से ही हमने कहा था कि ये तभी पॉसिबल है कि जब लाइट के पास कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। अब हम वेव नेचर को मान के चले थे, तो फिर एक कंसेप्ट और आ गया, फिर हमने एक और थ्योरी ली है, मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी ली है। हमने कहा कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। अब अगर लाइट फोटॉन्स की बनी हुई है तो हमने कहा कि ये जो फोटॉन्स है, इससे भी हमने इस चीज को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है बाय ए प्रिंसिपल या बाय एन एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? हॉलबर्ग एंड लियोनार्ड एक्सपेरिमेंट, या जिससे ऑब्जर्वेशन बाहर निकाल दी फिर आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बना दी। और जब ये प्रूव हो गया एक्सपेरिमेंटली, तो हमने कहा कि ये चीज भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई है, तो हमने माना कि लाइट जो है ना, लाइट के पास कौन सा नेचर है? अब लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, या लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। अब उसके बाद डी ब्रॉगली ने कहा कि जो लाइट, जो रेडिएशन और मैटर जो है, ये दोनों नेचर में पाए जाते हैं, तो इसलिए दोनों के लिए सिमिलर रूल्स होंगे लॉ ऑफ सिमेट्री के हिसाब से। तो अगर मैटर, रेडिएशन के पास ड्युअलिटी है, तो मैटर के पास भी क्या होगी? ड्युअलिटी। और उन्होंने हाइपोथेसिस किया, अपने हाइपोथेसिस से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट जो एक वेव होती है उसकी वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर दिया था, और वो जो वेवलेंथ उसने कैलकुलेट कर दी थी, दैट वेवलेंथ वाज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और उसको हम नाम देते थे मैटर वेव। और उस मैटर वेव का नाम, ये वैल्यू जो है उन्होंने कैलकुलेट कर दिया था, दैट वाज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ v, और v जो था दैट वाज द पोटेंशियल, दैट वाज पोटेंशियल। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। दो साइंटिस्ट्स आ गए, फिजिसिस्ट्स आ गए, उन्होंने कहा कि हम प्रूव करके देखेंगे, हम दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर भी है। अब कुछ फिनोमेना इलेक्ट्रॉन दिखाएगा बाय इट इज पार्टिकल, कुछ दिखाएगा बाय इट इज वेव। तो अगर वेव से भी उसने कुछ फिनोमेना दिखा दिए, तो हम कहेंगे ना कि मैटर के पास भी कौन सा नेचर होता है? मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। अब जो हमारा जो टॉपिक है, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों आ गया है? टू शो द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या टू शो द वेव नेचर ऑफ द मैटर, और इट इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। This is Davison and German experiment. पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है कि डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट हमको बताता क्या है। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट आया है टू शो और टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ या मैटर के साथ अगर वेव एसोसिएट है, जैसा कि डी ब्रॉगली ने कहा, उसी चीज को ये प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है, और उस वाले एक्सपेरिमेंट को हम नाम क्या देते हैं? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने इसमें एक यूज किया है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? देखो, ये एक फिलामेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के ऊपर हम कोटिंग करते हैं बेरियम ऑक्साइड की, ताकि वर्क फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना है, या इलेक्ट्रॉन इमिशन यहां से करना है, तो बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये जो ये टंगस्टन की फिल्म है ना, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, और ये जो बैटरी है, इस बैटरी को मैं नाम दूंगा LT, मींस लो टेंशन बैटरी। ये बैटरी बस इसलिए है ताकि इसमें से करंट चले, और ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट गर्म हो जाए। इसके ऊपर हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी है, और जब ये गर्म हो जाएगा तो थर्मियोनिक इमिशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन उसको इजीली बाहर निकालने के लिए हमने इसके ऊपर से क्या कर दी है? कोटिंग कर दी है। तो ये जो है ना, ये फिलामेंट, इस फिलामेंट से अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? लाइट से नहीं आ गए हैं, फील्ड से नहीं आ गए हैं, बल्कि हमने यहां से इसको गर्म कर दिया है, मींस यहां से थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है।
अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां से देखो, ये यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब ये जो है ना, इस फिलामेंट के आगे से हमने एक ऐसे लगा दिया है, इसके सामने से हमने ऐसे लगा दिया, ये मान लो एक ओपनिंग जैसी लगा दी है। और ये जो ये वाला साइड है, ये इसको मैं नाम दूंगा सी मींस कैथोड। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, या हमने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये वाली जो बैटरी है ना, ये बैटरी एक हाई टेंशन बैटरी है और ये एक वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी को दिखाने के लिए हमने इसमें एरो लगा दिया। और ये जो पोटेंशियल हमने लगा दिया है, इस पोटेंशियल को मैं डिनोट कर दूंगा कैपिटल टी से। नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ, और जो पॉजिटिव टर्मिनल इसका है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया है यहां से ऐसे। ये हमने इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। और ये जो पूरा अरेंजमेंट यहां से यहां तक का जो ये पूरा अरेंजमेंट है ना, इसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन का, दिस इज इलेक्ट्रॉन का। अब ये अरेंजमेंट है क्या, देखो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये मेटल्स, ये सरफेस हमने ली है, इसमें हमने थर्मियोनिक एमिशन कराया है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, क्या वो एक ही लाइन में जा रहे हैं, या वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो आंसर है वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मींस जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऐसे ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गए हैं, यहां गए हैं, इधर गए हैं, तो यहां से इस ओपनिंग से कम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब कन्वर्जेंट बीम बनाने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने नेगेटिव के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया है, तो यहाँ पे हमने प्लेट लगा दी है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन इधर गया है, ये भी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको उधर जाने के बजाय ऐसे धकेलेगा। अगर ये इसको ऐसे धकेलेगा, तो इसका मतलब है ना कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, जो ये स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड बनने के बाद अब क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम द कन्वर्जेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अगर हमने इसके सामने से एक छोटी सी ओपनिंग लगा दी है, ये मान लो बड़ी ओपनिंग नहीं है, छोटी सी ओपनिंग हमने लगा दी है, तो अगर हमने यहां से एक छोटी सी ओपनिंग लगा दी है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल आ जाएगी। तो मेक द इलेक्ट्रॉन बीम, हमने इस वाले साइड को कनेक्ट किसके साथ कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि जब यहां से बीम निकली है, कहीं ये बीम उधर इधर ना जाए, तो ये बीम जो है ना, यहां से पॉजिटिव हमने लगा दिया है, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब है ना कि वो इसकी क्या बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम या इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बीम बनाने के लिए हमने जो ये अरेंजमेंट लगा दिया ना, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं कॉलीमीटर आल्सो। यानी ये वो डिवाइस होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बनाएंगे, बीम बनाएंगे, एंड नंबर सेकंड के हम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब देखो यहां से भी हमने इसमें ओपनिंग लगा दी है। अब मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया है कि ये इतना बड़ा है, अदरवाइज ये इतना बड़ा नहीं है। यहां से एक ओपनिंग हमने ऐसे लगा दी है, छोटी सी ओपनिंग, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम जाए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन अब आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी ऐसे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आ रहे हैं। अब ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, और ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। जब ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएंगे, ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएंगे, बताइए किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पॉजिटिव के साथ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। मींस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अब यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, तो ये वाली बीम जो आ रही है, ये यहां से ओपनिंग से पास हो गई। क्या हो गई है, ओपनिंग से पास हो गई है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। क्लासिकल के अगर हम रूल देखेंगे, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन। तो ये बॉडी जो है ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये किस में है, मोशन में है, तो ये किस में रहेंगे, मोशन में ही रहेंगे। और ये बीम जो इलेक्ट्रॉन की है, वो यहां से ऐसे पास, मींस वो इस ओपनिंग से पास हो गई है।
अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला है तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज ने उसकी इलास्टिक को बढ़ा दिया है, क्योंकि E और V, E इंटू V क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, पहले इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ा दिया, मींस हमने वर्क फंक्शन कर दिया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर। और वर्क फंक्शन से ही इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को अब क्या बना दिया है, एक बीम हमने इनको बना दिया है। और ये जो बीम हमने बना दिया है, जो ये अरेंजमेंट हमने लगा दी, इस अरेंजमेंट को हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। या जो ये अरेंजमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की बीम को बनाते हैं, तो इसको हम, या हम ऐसे कहेंगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकालेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाएगा, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और जो इलेक्ट्रॉन की बीम बनाएगा उसको हम नाम क्या देते हैं, कॉलीमेटर। बहुत ही सिंपल तरीका है कैसे बनाएंगे, कि इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो इसका नेगेटिव था वो इस वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर ये C है तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज A, मींस दिस इज N। अब इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से चली गई, तो हमने इसके सामने एक क्रिस्टल लगा दिया है, ये हमने इसके सामने क्रिस्टल लगा दिया। और ये जो क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल है, दिस इज निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल हमने इसके सामने लगा। अगर ये निकल क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अब जो ये निकल क्रिस्टल है ना, हमने इसको काटा है, कैसे काटा है, हमने इसको ओब्लिकली काटा है। तो डायगोनल ओब्लिकली हमने इसको काटा है, मीन इसके अगर इसमें अरेंजमेंट ऐसे था, फॉर एग्जांपल ये मान लो अगर इसमें अरेंजमेंट ऐसे था एटम्स का, तो हमने इसको ऐसे नहीं काटा है, बल्कि हमने इसको ओब्लिकली काटा है, मीन इसके हमने इसको ऐसे काटा है, इस वाले तरीके से। और जब हम यहां से देखते हैं तो हमने इसमें देखा कि यहां से जो एटम्स है, एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, फिर हमने इसको ऐसे काटा है, मीन्स कि जब हम उनको अरेंजमेंट को देखते हैं तो वो अरेंजमेंट हमने ऐसे इसमें देखा, ये ऐसे हमने इसको काटा है। क्रिस्टल हमने कौन सा यूज किया है, निकल है ऑन ए क्रिस्टल, और वो जो क्रिस्टल है कौन सा क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल। क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मालूम है कि इसमें जो अरेंजमेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट है, वो कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अब जो ये क्रिस्टल है ना, उसको हमने काट दिया है, कैसे काटा है, क्यूबिकल डायगोनली हमने उसको काटा है, मींस कि उसको हमने डायगोनली काटा है, इस तरीके से हमने उसको काटा है। अब ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे है ना, ये लाइन जो मैंने बना दी है ना, तो इसको आप समझ लीजिए कि दिस इज द अरेंजमेंट इन विच द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल आर अरेंज्ड। तो इसमें हमने एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे ही है। अब देखो, अगर एक एटम यहाँ पे है तो दूसरा एटम यहाँ पे है, फिर तीसरा एटम यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, इसी तरह दूसरी लाइन में यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गई है, ये इलेक्ट्रॉन बीम अगर इसको स्ट्राइक करेगी तो ये यहाँ से स्कैटर हो जाएगी ऐसे, और यहां से अगर ये इसको स्ट्राइक करेगी तो यहां से स्कैटर हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम यहां से स्कैटर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से स्कैटर हो जाएगी। तो अगर ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है, इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक अरेंजमेंट लगा दिया है, और वो वाला अरेंजमेंट जो है ना, वो अरेंजमेंट हमने ऐसे लगा दिया, एक सर्कुलर स्केल हमने लगा दी, और इस सर्कुलर स्केल पे हमने एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमने एक डिटेक्टर लगा दिया, जिसको आप कंसीडर कीजिए कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एक तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इसको हमने पीछे से अरेंजमेंट लगा दी, इसको हमने ये कनेक्ट कर दिया है एमीटर के साथ। अगर एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई है तो इसका मतलब है ना कि वहां से क्या चली है, करंट। करंट कब चलती है, कि व्हेन देयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, और हमको पता चलेगा कि इसमें करंट चलती है, मींस कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। नंबर सेकंड, क्या अगर यहाँ से करंट ज्यादा आ रही है, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ रहे हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से आ रहे हैं, तो वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। अब ये जो अरेंजमेंट हमने लगा दिए, इस अरेंजमेंट को हमने नाम क्या दिया है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को हम रोटेट करते हैं ऑन ए सर्कुलर स्केल, ऑन ए सर्कुलर स्केल। और ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इस स्केल पे हमने मार्क लगा दिया है। मार्क मीन्स कि इसको हमने मार्क कर दिया है एंगल से, मीन्स
अगर ये 0 डिग्री, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, समझ में आ रहा है? तो ये अरेंजमेंट हमने बना दिया है। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे ना, ये अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लाइट में किया था। जब हमने लाइट में एक फिनोमेना पढ़ा था जिसको हम डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। डाइफ्रैक्शन में हम लाइट में एक सिंगल स्लिट लेते हैं। सिंगल स्लिट जब हम लेते हैं, जिस तरह हम वहां पे लेते हैं, तो ये एक सिंगल स्लिट है और इस सिंगल स्लिट के ऊपर हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया है और इस स्क्रीन पे हम देखते हैं कि यहाँ से ऐसे बन गया था कि यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, फिर इसके बाद इसके साइड में इंटेंसिटी कम हो गई थी और जब हमने उसका ग्राफ ड्रा कर दिया था तो वो ग्राफ ऐसे आ गया था। अगर ग्राफ ऐसे आ गया था तो हम कहते थे ना कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती थी? ज्यादा होती थी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती थी तो क्यों इंटेंसिटी ज्यादा होती थी? क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब अगर ज्यादा होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो गया था? एक क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ गया था। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे और इसके साइड में हमने देखा कि ये इंटेंसिटी में अगर ये मैक्सिमा है तो इसके साइड में डायरेक्ट बैंड्स बन गए थे, और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है और इसके साइड में डायरेक्ट बैंड्स बन गए थे। तो हमने कहा था कि इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू कि जब हम लाइट का कौन सा नेचर लेते हैं? जब हम लाइट का वेव नेचर लेते हैं। अगर हमारा ग्राफ यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही आ गया है, अगर हमारे ग्राफ में भी एक पीक आ गया है, पीक के साथ साथ साइड्स में अगर हमारे पीक कम आ गए हैं, तो हम कहेंगे ना कि जहां पे पीक आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है ना व्हेन देयर इज द सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मैटर का कैरेक्टरिस्टिक है या वेव का कैरेक्टरिस्टिक? तो आंसर है सुपरपोजिशन वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है? अब हमने यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया, तो हमने यहां से देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन की बीम आ गई। ये इलेक्ट्रॉन की बीम कहां से आ गई है? कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से इस एटम को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये यहां से आ गई और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने इसको क्या कर दिया है? डिटेक्ट कर दिया है। अब जो ये एंगल बनता है ना, यहां से जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो थीटा को हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब अगर ये एक एटम है तो ये दूसरा एटम यहाँ पे है, तो दो एटम्स के बीच में जो गैप है, दो एटम्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को अगर मैं नाम दूंगा डी, और ये वाली जो डी है ना, इस डी को हम नाम देते हैं दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या ये जो है दिस इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द टू एटम्स ऑफ ए क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? और यही डी जो है ना, यही डी हमने वहां पे भी लिया था। अगर आपको याद होगा, हमने एक स्लिट लिया था, सिंगल स्लिट, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, इन दो के दरमियान जो ये डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस किसके बराबर थी? डी के बराबर। और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस किसके बराबर थी? कैपिटल डी के। समझ में आ रहा है? अब यहां से देखो, हमने यहाँ पे एक एंगल लिया है और ये वाला एंगल कौन सा है? दिस एंगल इज थीटा। अब यहां से जो ये वाली जो लाइन है, यहां से जो ये वाली लाइन जिसको अब मैं आगे ले रहा हूं, ये वाली लाइन जो है, तो इलेक्ट्रॉन बीम इस वाली लाइन पे क्या है? इस वाली लाइन पे ये इंसिडेंट है। अब यहां से स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे आ गई है, तो मीन इसकी ये यहां से स्कैटर हो गई है, और इस एंगल को हमने नाम क्या दिया है? दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनता है, तो इस एंगल को अगर मैं नाम दूंगा फाई, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। और ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को भी हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ ग्लांसिंग, मीन इज एंगल ऑफ फाई। ये समझ में आ रहा है? अब हमने जब ग्राफ ड्रा कर दिया, तो ग्राफ हमने ड्रा कौन सा कर दिया? यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ ड्रा करते हैं, और वो जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं रेडियल ग्राफ। उस ग्राफ को हम नाम क्या देते हैं? रेडियल ग्राफ। रेडियल ग्राफ क्या होता है? देखो, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से हमने ग्राफ ड्रा करना है, रेडियल ग्राफ हमने ड्रा करना है, रेडियल ग्राफ। हमने पहले देखा कि जब हमारा एंगल जो था, व्हेन द एंगल वाज 0 डिग्री, जब एंगल कितना था? 0 डिग्री, मीन जब थीटा का वैल्यू 0 था, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 0 था। तो अगर मैं इस वाली लाइन को लूंगा, ये 0 डिग्री। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहां से जब एंगल बन गया था 10 डिग्री, ये मान लो 10 डिग्री,
ये मान लो दिस इज द एंगल, ये 20 डिग्री का है, फिर इसके बाद ये 30 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 80 का है और ये 90 का है। समझ में आ रहा है? अब ये 0 डिग्री, ये 10, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, 80 और 90, ये एंगल है। अब 0 डिग्री पे इंटेंसिटी हमको कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। अगर 0 डिग्री पे मुझे इंटेंसिटी 1 मिली है तो मीन्स कि मैं यहां पे मार्क कर दूंगा, मैं कहूंगा 0 डिग्री पे इंटेंसिटी। जब एंगल बढ़ गया है तो मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी अगर 1 थी, अगर अब इंटेंसिटी 2 हो गई है तो मैं यहां पे मार्क कर दूंगा। अब जो ये ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं ना, एंगल्स में जो ये ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं, तो इसी ग्राफ को हम नाम क्या देते हैं? दिस इज रेडियल ग्राफ। और आपको याद रखना है कि हमने यहां से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ ड्रा कर दिया है, दैट ग्राफ इज रेडियल ग्राफ। अब देखा क्या हमने? देखा हमने ये कि जब हमने यहां से वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है, ये वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दी है 44 से 68 वोल्ट तक हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। मीन्स कि ये वोल्टेज हमने यहां से चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिए? ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हो जाएंगे तो जब वो इस पर स्ट्राइक करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये इसको ज्यादा जोर से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? अगर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हमको बताएगा कि करंट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। इसीलिए हमने वोल्टेज को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। वोल्टेज को अब हमने कहां से कहां तक चेंज कर दिया? 44 डिग्री से कहां तक? 68 डिग्री तक। ये 68 वोल्ट डिग्री तक नहीं। अब हमने एक वोल्टेज ली है और वो वाली जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज हमने ली है 54 वोल्ट्स। 54 वोल्ट्स पे जब हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया, अगर आप बुक्स पे भी देखेंगे, आप 44 पे भी ग्राफ देखेंगे, 50 पे भी देखेंगे, 51 पे भी देखेंगे, 60 पे भी देखेंगे, 63 पे भी देखेंगे, 54 पे भी जब आप ग्राफ देखेंगे, तो 54 पे जब हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया, हमने देखा ऐसे कि 0 डिग्री पे अगर सपोज वैल्यू मेरा आ रहा था 2, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब एंगल बढ़ा दिया है तो वैल्यू 10 पे आ रहा है ऐसा। अब यहाँ पे 20 पे हमने देखा तो ये आ रहा है सपोज 3 के बराबर, 30 पे देखा तो ये आ रहा है 4 के बराबर, 40 पे देखा तो ये आ रहा है 5 के बराबर, 50 पे देखा तो ये आ रहा है सपोज 7 के बराबर, 60 पे देखा ये आ रहा है 5 के बराबर, और 70 पे देखा ये कम हो रहा है। तो जब हमने इस ग्राफ को ऐसे ड्रा कर दिया, तो हमने पीक देखा। क्या देखा? पीक देखा। कहां पे देखा? हमने पीक देखा है 50 वोल्ट्स पे। अगर आप ग्राफ को वहां से अच्छी तरह से देखोगे तो आपको ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा मिलेगा और आप कहोगे कि हमको एक हम्प जैसा मिला है। कहां पे मिला है? व्हेन द ग्राफ व्हेन एट 50 डिग्री। तो 50 डिग्री पे व्हेन द वोल्टेज वाज 54 वोल्ट्स, तो 50 डिग्री पे मुझे क्या मिला है? हम्प मिला है। और हम्प के बाद यहां से भी कम और यहां से भी कम, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ये कम हो रहा है फिर थोड़ा सा बढ़ गया, यहां से भी कम हो गया फिर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा हमको कहां पे मिला था? डाइफ्रैक्शन में मिला था। जब हमको डाइफ्रैक्शन में ग्राफ ऐसा ही मिला था तो हमने कहा कि ये जो हम्प यहाँ पे मिलना है, ये जो यहाँ पे ये पीक मिलना है, ये पीक इसीलिए हमको मिल गया है क्योंकि वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस कर रहा है। और ग्राफ से हमने कहा कि ये ग्राफ बिल्कुल रिजेंबल करता है किसे? डाइफ्रैक्शन से। अगर डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है बाय द वेव नेचर, तो इसका मतलब है ना कि यहाँ पे भी कौन सा नेचर है? वेव नेचर। तो ग्राफ से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन ने कौन सा नेचर दिखा दिया है? वेव नेचर। अगर ग्राफ से हमको पता चला है, अब देखो तो बहुत सारे तरीके हमारे पास करने के होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल, दूसरा होता है मैथमेटिकली, तीसरा होता है ग्राफिकल। ग्राफिकली हमने देखा कि ये जो ग्राफ हमको मिलता है, ये ग्राफ बिल्कुल रिजेंबल करता है किसे? डाइफ्रैक्शन वाले ग्राफ से। अगर डाइफ्रैक्शन वाला ग्राफ में हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है तो यहाँ पे भी हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिला, और इसके साइड में हमको कुछ डार्क और ब्राइट बैंड्स मिले हैं मगर इंटेंसिटी उनकी कम थी। तो यहाँ पे भी हमको बिल्कुल वैसा ही मिला है। तो हमने कहा कि अगर दोनों ग्राफ सेम है तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे वेव नेचर था तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ने कैसा नेचर दिखा दिया है? वेव नेचर दिखा दिया। तो ग्राफ का बनना ऐसा पॉसिबल तभी है जब हमने कौन सा नेचर लिया है? वेव नेचर। अब इसके बाद हमने इसमें मैथमेटिक्स को यूज कर दिया, हमने इसमें इक्वेशन को यूज कर दिया जो हम सॉलिड्स में पढ़ते हैं, दैट इक्वेशन इज ब्रैग्स इक्वेशन।
ब्रैग्स इक्वेशन किसके बराबर होती है? ब्रैग्स इक्वेशन होती है बराबर 2d साइन ऑफ थीटा, 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन का वैल्यू अगर हम 1 के बराबर लेंगे तो यहां से आ जाएगा ये किसके बराबर? लेमडा के बराबर। एन का वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया है? 1 के बराबर। अब यहां से देखो 2 इंटू डी, डी क्या है? डी इज द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। अब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग निकल क्रिस्टल में कितनी होती है? तो निकल क्रिस्टल में इंटरएटॉमिक स्पेसिंग का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। डी का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? मैं इसको चेक भी करूंगा। तो डी का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ये डी क्या है? डी इज द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इन द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल कौन सा हमने लिया था? निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल में डी का वैल्यू हमने लिया है। अब यहां से आ रहा है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? तो साइन ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हम यहां से लेंगे साइन ऑफ फाई, फाई मींस दिस इज द एंगल ऑफ ग्लांसिंग। अब फाई का वैल्यू हम पहले यहां से निकाल देंगे। फाई का वैल्यू किसके बराबर होता है? देखो अगर हम तीनों एंगल्स को लेंगे ना, ये वाला जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग उस वक्त था, बताइए कितना आ गया था? 50 डिग्री आ गया था। कितना आ गया था? 50 डिग्री आ गया था। और वोल्टेज जो हमने अप्लाई कर दी थी, वोल्टेज अप्लाई हमने कितनी की थी? 54 वोल्ट्स। हाँ, जहां पे हमको मिला था वो कौन सा एंगल था? 50 डिग्री था। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग 50 डिग्री का है, तो अगर हम ये वाली लाइन लेंगे तो ये पूरा एंगल जो इस पे बनता है, बोलो वो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। अब यहां से देखो फाई प्लस थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होगा? 180। तो मैं लिखूंगा यहां से थीटा प्लस फाई किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो थीटा प्लस फाई और फाई का वैल्यू कितना होता है? 2 इज इक्वल टू 180। अब मुझे बताएं यहां से थीटा का वैल्यू कितना है? 50 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 50। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। 60, तो 2 का वैल्यू होगा 130 के बराबर। बोलो 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 का वैल्यू होगा ना 130 डिवाइडेड बाय 2। 130 डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू किसके बराबर होता है? 65 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, तो ब्रैग्स लॉ के हिसाब से जो इक्वेशन हमारी ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन है, दैट इज 2d sin of phi is equal to lambda। थीटा नहीं लेना है, थीटा कौन सा है? दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये जो फाई है ना, इस फाई को हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ ग्लांसिंग। दिस इज एंगल ऑफ ग्लांसिंग। तो ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ ग्लांसिंग। तो 2d sin of phi का वैल्यू किसके बराबर होता है? n लैम्डा। n का वैल्यू हमने कितना लिया है? 1। तो इज इक्वल टू किसके बराबर? लैम्डा। d का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। d क्या है? दिस इज द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। और क्रिस्टल हमने कौन सा लिया है? निकल क्रिस्टल। तो अगर हम वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 इंटू साइन ऑफ फाई का वैल्यू कितना होता है? 65 डिग्री। दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा का वैल्यू अगर हम देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन 60 का वैल्यू आप देख लेंगे 0.91 इंटू 2 इंटू 10⁻10। तो अगर हम इसको वैल्यू ये पुट कर देंगे, इसका वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा का वैल्यू जो हमको मिला है बाय द ब्रैग्स इक्वेशन, वो किसके बराबर आ गया है? 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब ये 1.65 एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये हमने निकाला है कैसे? एक्सपेरिमेंटली हमने इसको निकाला है। तो एक्सपेरिमेंटली भी हमको मिला है कि वेव होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट वेव होती है। ग्राफिकली हमने देखा कि जो ग्राफ हमारा है वो रिजेंबल करता है किसके साथ? वो ग्राफ करता है एट 54 वोल्ट्स। और जो पीक वहां पे बनता है एट 50 डिग्री एंगल पे वो पीक बनता है। और वो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको कहां पे मिला था? डाइफ्रैक्शन में हमको मिला था। जिस तरह वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा मिला था, इसी तरह यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। तो ग्राफ से हमने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां पे हमको मिला था। अब हमने मैथमेटिकली देखा, तो मैथमेटिकली हमने यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया। लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है? 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब डी ब्रॉगली ने जब वो कैलकुलेट कर दिया था, उन्होंने हाइपोथेसिस से कहा था कि लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि लैम्डा का वैल्यू होता है बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। और ये जो लैम्डा है ये किसमें उन्होंने लिया था? एंगस्ट्रॉम में। अब वी क्या था? वी वाज द पोटेंशियल अप्लाइड। अब पोटेंशियल जब हमको ग्राफ में हम्प मिला था 50 पे एट दिस एंगल,
तो अगर यहाँ पे उस वक्त हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की थी 54 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज को हमने चेंज किया था ना 44 से कहां तक 68 तक। मैक्सिमम हम्प जो हमको मिला है वो 50 डिग्री पे मिला, मगर उस वक्त वोल्टेज कितनी थी 54 थी। तो मैं अगर यहाँ से पुट कर दूंगा तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 54। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1.66 एंगस्ट्रॉम। अगर 1.66 एंगस्ट्रॉम ये आ गया है तो अगर आप इसको देखोगे 1.65 एंगस्ट्रॉम, तो 1.66 और 1.65 ऑलमोस्ट क्या है सेम है। इसका मतलब है ना जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने कहा था, जो डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस से कहा था कि वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा और हमने एक्सपेरिमेंटली भी उसको प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब है ना कि जो एक्सपेरिमेंटली भी वही चीज निकल रही है जो डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा था। तो इस तरह हमने यहां से कंक्लूड कर दिया है कि जो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, इस डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द या द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए आगे और एक्सपेरिमेंट हो गए थे, जिनमें एक्सपेरिमेंट है थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, और यही एक्सपेरिमेंट जो है ना, इन एक्सपेरिमेंट्स को आप हायर क्लास में भी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है वेव, या इलेक्ट्रॉन के पास होता है वेव कैरेक्टर, और वो जो इलेक्ट्रॉन के पास वेव एसोसिएट होती है उस वेव का वैल्यू, उस वेव का जो वेव लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है 1.66 एंगस्ट्रॉम बाय डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि वो कितना होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? फिर एक बार आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, हमने एक इलेक्ट्रॉन गन लिया है, यानी यहां से हमने एक फिलामेंट लिया है टंगस्टन का, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है बेरियम ऑक्साइड की, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना या उसका वर्क फंक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक कन्वर्जेंट बीम बनाना, हमने यहाँ से एक कैप, मान लो आपने कैप हमने लगा दी है, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये कैथोड बन जाएगा, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे साइड से लगा दिया है, एक होल ये ओपनिंग से लगा दिया है या एक पाइप से लगा दिया है। तो ये जो अरेंजमेंट बन गया है, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, यहां से जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, और जहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं उसको हम कॉलीमेटर बोलते हैं। और ये जो वोल्टेज हमने यहाँ से लगा दी है ये हाई टेंशन वोल्टेज है, और ये हाई टेंशन वोल्टेज जो है ना ये वेरिएबल है, मींस कि हम इसको चेंज करेंगे, कहां से कहां तक हमने एक्सपेरिमेंट में इसको चेंज किया था 44 से कहां तक 68 तक। आगे हमने एक निकल क्रिस्टल रखा है, और निकल क्रिस्टल में जो डी का वैल्यू हो वो किसके बराबर है 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और जब हमने इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिफाई कर दी तो इस इलेक्ट्रॉन बीम, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक डिटेक्टर लगा दिया, और उसको हमने एक सर्कुलर स्केल पे क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, ताकि हमको पता चले कि अगर हमने यहाँ पे 30 पे देखा है तो वहां पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमको करंट का वैल्यू मिलेगा, अगर हमने 40 पे लिया है तो अगर हमको करंट का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है ना कि इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ से क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और इसके बाद हमने ब्रैग इक्वेशन को यूज कर दिया। ब्रैग इक्वेशन क्या है, 2d sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। सॉल्व इसमें आप पढ़ेंगे तो d का वैल्यू हमने पुट कर दिया है sin 65 sin। अब एंगल कौन सा लेना है, क्या हमको स्कैटर्ड एंगल लेना है या एंगल ऑफ ग्लांसिंग लेना है, तो आंसर है हमको एंगल ऑफ ग्लांसिंग लेना है। तो हमने एंगल ऑफ ग्लांसिंग लिया है, और एंगल ऑफ ग्लांसिंग का वैल्यू कितना है 65, और हमने यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, और ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जब हमने इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये रिलेट कर दिया है तो हमको लगा कि जो दोनों की वेवलेंथ है, दोनों की वेवलेंथ का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम। अगर दोनों की वेवलेंथ का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो जो डी ब्रॉगली ने कहा था हमने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। अब अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया तो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, यानी विद ए मूविंग पार्टिकल देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। तो हम यहाँ से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। समझ में आ रहा है?